All right, Bismillahirrahmanirrahim. आप सबको पता है कि we have already started with organic, the most important, easy and extensive chapter in IGCSE and O-levels chemistry. And why this chapter is important? It is because in paper MCQ, I'm in paper 1 for O-levels and paper 2 for IGCSE, you will have to solve at least 5 to 7 MCQs just from this chapter. The only chapter with the highest number of MCQs in the past papers. 7 MCQs, imagine. And then in theory, not less than 10 marks, not less than, sometimes to 12, 13 marks, but not less than 10 to 12 marks from this chapter. So I hope you all understand the importance of this chapter, and accordingly you are working on it. Yesterday we started with alcohols. They are, the homologous series contain OH, general formula is CnH2n plus 1. There are first four member that the name you should know: methanol, ethanol, propanol, and butanol. Isomerism is when molecule have the same formula but different structure. Making of alcohol, especially ethanol, is part of our syllabus, right? So how do you make ethanol? You can react your ethene. You can react ethene with steam. That would be an addition reaction in the presence of 260 atm phosphoric acid to give you ethanol, an addition product. So the first reaction through which you can make ethanol is from ethene. You mix steam with ethene in the presence of 200 degrees Celsius, 60 atm pressure, and phosphoric acid as catalyst. You get ethanol. The other important conversion is when you react your glucose. In fact, you ferment your glucose. The reaction is called fermentation. You ferment your glucose under extremely important conditions, 25 to 35 degrees Celsius, anaerobic condition, in the absence of yeast enzyme, in the absence of air, and in the presence of yeast enzyme, you would ferment. It's a slow process, but you will still end up having ethanol, and a byproduct is also made here, which is called carbon dioxide. It is a slow process since less temperature is used. That is an advantage, but the disadvantage is it is slow. Advantage is it requires less temperature. Hydration is quick, produce pure alcohol, but the disadvantage is since it requires a lot of heat, it is very expensive. We did only one reaction of alcohol, and that is to make carboxylic acid. And the reaction is called oxidation of alcohols. It's called oxidation of alcohol. Now, there are two types of oxidation, everyone. We have complete oxidation and we have bacterial oxidation. Complete oxidation of alcohols takes place in the presence of acidified KMNO4. Acidified. वो आपसे पूछ सकता है कि what is the condition for the oxidation of alcohol? So what is the condition? Acidified KMNO4 is an oxidizing agent. So we need acidified KMNO4, and the color of KMNO4 is purple. When it will cause oxidation, it goes colorless, and a redox reaction has occurred. The other type of oxidation is called bacterial oxidation, in which you put your alcohol in air. It is oxidized by the bacteria in air to give you the vinegar. The next reaction, which is extremely important, आज का चैप्टर है ही हमारा उस पे, उसका नाम है, अच्छा चलें पहले इजी वाला पढ़ लेते हैं, combustion of alcohols. यार combustion तो बिल्कुल वही है जो हमने पढ़ी भी, combustion of alcohols. Again, you have complete combustion and you have incomplete combustion. Complete combustion of alcohol, let's say you have C2H5OH. Complete combustion, excess oxygen.
will always give you CO2 and H₂O. Incomplete combustion is C2H5OH. Again, reaction वही है लेकिन limited oxygen है. Incomplete combustion takes place in the presence of less oxygen. You'll get CO and H₂. So the difference is between this product. In complete combustion, you'll get CO2 and water, whereas in incomplete combustion, you'll get CO and water. You can balance the equation as well. देखो 2 कार्बन है तो यहाँ 2 लग जाएगा, 6 हाइड्रोजन हैं तो यहाँ 3 लगेगा. ऑक्सीजन हमेशा एंड पे बैलेंस करने हैं. सो 4 and 7 ऑक्सीजन हैं तो इसके साथ 3 लग जाएगा. ये बैलेंस अल्कोहल को बैलेंस करना भी सुपर इजी. देखो ये बैलेंस हो राइट. यहाँ बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे सो वी हैव ऑक्सीजन एंड 2 कार्बन है तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, 2 and 3 5 और यहाँ 2 आ गया. वी हैव 5 ऑक्सीजन अंदर, 1 here and 4. So combustion is almost, not almost, but exactly the same what we already did back in alkanes and alkenes. Complete combustion, carbon dioxide and water. Incomplete combustion, carbon monoxide and water. यहाँ तक ठीक है भाई, कोई मसला तो नहीं है? No. Haifa and everyone. All right. The last, in fact, second last, the fourth homologous series in our syllabus is called carboxylic acids. Carboxylic acids, the functional group is C double bond O and OH or COOH. This is the functional group of carboxylic acids. आज का जनरल फॉर्मूला क्या है? CN H2N plus 1 COOH. अच्छा यहाँ पे that is different from the entire जितने भी हमने पढ़े हुए उन सबसे डिफरेंट है ये फंक्शनल, ये जनरल फॉर्मूला, बिकॉज इसके फंक्शनल ग्रुप के अंदर ये कार्बन है. लुक एट दिस. सो अगर आप इसको N0 भी कर दोगे तो स्टिल वी हैव 1 कार्बन हियर. तो इसका N0 से स्टार्ट होता है. देखना N0 कर रहे हैं हम लोग, 0 हो जाएगा. 2 into 0 plus 1 and then COOH. Even if this is 0, 0 हो जाएगा, ये 2 0 and plus 1. एक हाइड्रोजन ये बच गया और COOH. So even if N is 0, we still have 1 carbon that is called methanoic acid. So that is the only homologous series where the N starts with, N कहाँ से start हो रहा है? 0 से. And N0 का मतलब है meth. Then N2. तो N2 में करूंगा तो मुझे कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी, बस एक कार्बन बढ़ाऊंगा, 2 हाइड्रोजन बढ़ाऊंगा. ये फंक्शनल ग्रुप तो चेंज नहीं कर सकता ना मैं. मैंने आपको बताया था कंसेक्यूटिव मेंबर डिफर बाय 1 कार्बन. एक हाइड्रोजन पहले से है, 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन. फिर नेक्स्ट में जाएंगे, N3 लिखेंगे. नहीं, यहाँ पे N1 आएगा ना, और यहाँ पे N2 आएगा. राइट. So एक कार्बन बढ़ाएंगे, 2 हाइड्रोजन्स, and you cannot change the functional group. I hope you can write the name of these. How many total carbons are here? 2. तो ये है ethanoic acid. How many total carbons here? 3. Propanoic acid, right? And similarly, अगर आप N3 पुट करोगे तो एक कार्बन बढ़ जाएगा, C3, 2 हाइड्रोजन्स और C. So this is butanoic acid. So these are the 4 carboxylic acids part of our syllabus. But before you start अच्छा इसको लिख लें प्लीज सब लोग. कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं तो इनकी pH बिलो 7 ही होगी ना. बट यू नो व्हाट, दीज आर वीक एसिड्स. ये क्या होते हैं? ये तो वीक एसिड्स हैं. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड? एनीवन? द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड किसी को नहीं पता? यहां लिख देता हूं, पता होना चाहिए वैसे. एक्सपेक्ट यू टू नो.
डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। यार इस तरह तो ना करो यार। जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ना, आर वीक एसिड्स। वीक एसिड्स का मतलब है एसिड्स दैट पार्शियली आयनाइजेस, दैट partially ionizes and produce less H plus ions, right? फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास है ऑर्गेनिक एसिड, इसका नाम, इसमें 2 कार्बन है तो एथेनोइक एसिड है। हाउ वो आपसे कहेगा डिस्क्राइब द इक्वेशन, राइट एन इक्वेशन विच शोज दैट एसिड इज अ वीक एसिड। तो जब आपने इक्वेशन से शो करना है कि ये वीक है, तो आपने ये वाला एरो लगाना है। वो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा राइट एन इक्वेशन which will show, which will represent that this ethanoic acid is a weak acid। तो आपने एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला लिख लिया, एसिड हमेशा एक्वस होते हैं। एंड नाउ यू विल राइट द रिवर्सिबल एरो, इसको अलग कर देना बस। हाइड्रोजन एसिड्स क्या होते हैं, दैट डोनेट H प्लस आइन, तो ये वाला H प्लस अलग हो जाएगा। जब ये H प्लस अलग हो जाएगा तो बाकी जो भी बचेगा सारे के ऊपर -1 का चार्ज आएगा। CH3COO नेगेटिव एंड बोथ आर एक्वस। क्योंकि ये वीक एसिड है तो ये पार्शियल आयनाइज होगा, लेस हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। इसकी पीएच क्या होगी, अराउंड बिटवीन 4 to 6, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। यूजुअली हम 4 लिखते हैं या 5 लिखते हैं। सो दीज आर वीक एसिड्स नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये वीक होते हैं क्योंकि ये लेस आयनाइज होते हैं। दे डू नॉट गो कंप्लीट आयनाइजेशन, दे partially ionizes, produces less hydrogen ions, and that is how you represent the ionization of, the weak acids. You put reversible arrow which shows that it does not completely ionizes। हाइड्रोजन अलग हो गया, बाकी जो भी बचा उसके ऊपर -1 का चार्ज। सबको समझ आ गई बात? यस, आगे चलें भाई। कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया हमने। फंक्शनल ग्रुप, जनरल फार्मूला, N starts with 0, that's a unique thing, and first 4 carboxylic acids and they are weak acids। सबको समझ आ गई बात? चलें आगे चलते हैं। एक मजे की बात अगर मैं आपको बताऊं, आपको पता है कि हमने मेकिंग ऑफ एल्कोहल्स पहले से पढ़ ली हुई। किस किस को पता है? मेकिंग ऑफ एल्कोहल हमने पढ़ ली हुई, सॉरी मेकिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी अगर आपको याद हो, कल की क्लास में हमने एल्कोहल्स पढ़ा था, और एल्कोहल्स की कंप्लीट ऑक्सीडेशन या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन और वीक ऑक्सीडेशन। इसमें विनेगर बनाया था, इसको बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, और KMnO4 के साथ हमने like carboxylic acid बनाया। So we've already studied। So basically what you can do is you can convert your alcohol to carboxylic acid through oxidation, either strong or weak। In weak you get vinegar which is still a carboxylic acid, और बहुत ही वीक होता है। अगर आप अल्कोहल को थोड़ी देर बाहर रखोगे तो उसका वो खट्टा हो जाएगा टेस्ट में, sour, and it has been oxidized by the bacteria in air। अच्छा, इसकी भी रिएक्शन में कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद एल्कोहल। सो एल्कोहल्स रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें तो गैस है ही नहीं, मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि 3 to 4 मार्क का क्वेश्चन सिर्फ यही रिएक्शन है, इससे ज्यादा हो सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्कोहल्स रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड to form esters, a new family, and water, right? एल्कोहल्स किससे रिएक्ट करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड से। क्या बनता है? एस्टर। सब लोग कान खोल के सुनेंगे, एस्टर और वाटर। लेकिन होता कैसे ये रिएक्शन? इमेजिन आपके पास मेथनॉल, मेथनॉल, और आपने इसका रिएक्शन किया है। इसका नाम मुझे कोई बताएगा बच्चा? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल? ये तो मेथनॉल है एक कार्बन, और ये दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा? व्हाट कार्बोक्सिलिक एसिड इज दिस? कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है भाई? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अकेला ही बातें कर रहा हूँ।
ऐसा ना किया करो यार, रिस्पॉन्स किया करो यार। ऑनेस्टली आपके जो सीनियर बैच है ना, जो अभी ए लेवल्स में चले गए सारे बच्चे, वो तो उनको तो मुझे बड़ा मुश्किल से चुप कराना पड़ता था क्लास। आपको ऐसे लग रहा है मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बस खुद ही बैठा हूँ, किसी को पढ़ा नहीं रहा। बी एक्टिव, पार्टिसिपेट, आस्क, डिस्कस, गलत बताओ सही बताओ, आई वांट यू टू पार्टिसिपेट, मेक दीज क्लासेस मोर प्रोडक्टिव। मुझे तो आता है, आप लोगों के लिए हम कर रहे हैं, इसलिए आपको आना चाहिए जो भी हम काम कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज अल्कोहल बिकॉज इट कंटेन OH, एक कार्बन है तो मेथ होगा, तो मेथनल, एंड क्योंकि ये 2 कार्बन है तो एथ होगा, और क्योंकि इसमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप है तो ओइक एसिड होगा, एथेनोइक एसिड। ठीक है भाई, सबको समझ आ गई? सो ये रिएक्ट कैसे करेंगे, कान खोल के सुने सब लोग और आंखें भी खोलें। Whenever carboxylic acid react with alcohol, तो रिएक्शन ये होगा कि ये वाला वाटर बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अल्कोहल का वो वाला हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, वो हाइड्रोजन दे विल रिएक्ट टू फॉर्म वाटर। ये देखो H₂O बन गया। अब जो बाकी रह जाएगा, यू नीड टू कनेक्ट। कनेक्ट कैसे करना अभी देखते हैं। CH3 से मैंने स्टार्ट किया, ये वाले CH3, इट इज बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, दैट ऑक्सीजन वाज बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, लेकिन ये वो हाइड्रोजन तो टूट गया। अब हाइड्रोजन तो टूट के वाटर बन गया, बट दिस ऑक्सीजन, अब इस ऑक्सीजन का बॉन्ड ओपन है। अब ये ऑक्सीजन किससे कनेक्ट होगा? टू दैट कार्बन जिसका OH ब्रेक हुआ। तो जिनके बॉन्ड ब्रेक हुए हैं वो आपस में बॉन्ड बनाएंगे, और उस CO के साथ एक CH3 उस साइड पे लगा। दिस इज हाउ कैन यू मेक योर एस्टर, एंड दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एस्टर, with CO2 in the middle, both side you have carbonates। सबको समझ आई? अल्कोहल का H उड़ाएंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH उड़ाएंगे, और अल्कोहल के ऑक्सीजन को अल्कोहल के ऑक्सीजन को, ये अल्कोहल वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड के CO से कनेक्ट कर देंगे, तो एक एस्टर बने। देखें इसको सब लोग कैसे हुआ प्लीज। एक और एग्जांपल लिखें, एक और लिखते हैं। इसका एस्टर बनाएं सब लोग, इन दोनों को रिएक्ट करवाएं, और ड्रॉ द एस्टर ऑफ दिस मॉलिक्यूल, यू गेट 10 रुपीज एज अ प्राइस, जिसने सही बनाया। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एस्टर एवरीवन। शाबाश, 20 seconds. Draw the structure of ester. Done. 10 seconds. ओके, सो कैसे करेंगे देखना, मैंने कहा था OH का H उड़ाएंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH उड़ाएंगे, उड़ा दिया। अब अल्कोहल के ऑक्सीजन को उस कार्बन से कनेक्ट कर देंगे जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसे किया था पहले भी, ऐसे ही किया। देख लो, उसको मैंने यूं लिखा हुआ था, इसको मैंने यूं लिखा हुआ, करना काम वही है। अब इसको लिखेंगे कैसे, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। CH3 CH2O, that O is now bonded to carbon double bond oxygen। अब उस कार्बन का ये OH तोड़ गया, अब उस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ क्या कनेक्टेड है? CH2 एंड CH3, उसके साथ एक CH2 कनेक्टेड है और एक CH3 आगे उसके, और H2। दिस इज योर एस्टर। सबको नजर आ रहा है? मॉलिक्यूल देखें मैंने कनेक्ट कैसे किया और ब्रेक कैसे किया। OH उड़ा दिया, उसके साथ ऑक्सीजन को जोड़ा, और जो भी था कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के वो फ्लिप होकर दूसरी साइड पे चला। कनेक्ट एंड सी हाउ इट वर्क्स। प्लीज इसको ड्रॉ करेंगे सब लोग।
अभी एस्टर्स पे पूरा लेक्चर लगाएंगे कल हम लोग, अभी इसकी नेमिंग करनी है। एक और एग्जांपल करें। यस हाइफा। Yes, sir. डन, ये समझ आइए। ओके, वन लास्ट एग्जांपल। आई वांट एवरीवन टू ड्रॉ this is your butanoic acid. I want you to react it with methanol. इसका प्रोडक्ट लिखें सब लोग, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? What ester would they make? एस्टर बनता ही तब है जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है। Thirty seconds. Done. अब देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और इसका H डिलीट हो गए, H₂O बन गया। कनेक्शन कैसे नया बनाएंगे? ऑक्सीजन, अल्कोहल का ऑक्सीजन इसके कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से दोस्ती करेगा। अब जो रह गया उसको लिख देंगे हम। देखना जरा, यहां से शुरू कर रहा हूं। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O। अब उस डबल बॉन्ड O का OH तो उड़ गया। अब दैट C डबल बॉन्ड इज बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन का ये H भी उड़ गया। अब उस ऑक्सीजन के साथ क्या कनेक्टेड है? CH3. This is how you draw your ester. करेक्ट। ओके, अब नेमिंग पे आए सब लोग। नेमिंग पे आए जरा। मुझे बताएं व्हाट अल्कोहल इज यूज्ड हियर। ये तो मेथनॉल है, ओके, कार्बन वाला अल्कोहल, मेथनॉल। ये कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है? कैन यू नेम दिस कार्बोक्सिलिक एसिड? एनीवन इन द क्लास? व्हाट कार्बोक्सिलिक एसिड इज दिस? हाउ मेनी कार्बन्स? हाउ मेनी कार्बन्स? 4. तो सर दिस इज ब्यूटेन, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो दिस इज ब्यूटेनोइक एसिड। Okay, so the ester that is made when methanol reacts with butanoic acid. Methanol reacts with butanoic acid. उसका नाम होगा मीथाइल। जो अल्कोहल होगा वो बन जाएगा आइल। मीथाइल मेथनॉल था तो मेथनॉल से बन गया मीथाइल। एंड क्योंकि ये ब्यूटेनोइक एसिड है तो इसको हम कहेंगे ब्यूटेनोएट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ O8 आ जाएगा और अल्कोहल के साथ आयल आ जाएगा। सो जो भी अल्कोहल यूज करेंगे वही अल्कोहल आयल बन जाएगा। अगर मेथनॉल यूज कर रहे हैं तो जो एस्टर बनेगा वो मिथाइल। एथेनॉल यूज कर रहे हैं तो वो इथाइल होगा। प्रोपेनॉल यूज कर रहे हैं तो प्रोपाइल, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने कौन सा अल्कोहल यूज किया था? मेथनॉल। तो इस एस्टर का नाम होगा मिथाइल। और यहाँ पे कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर रहे हैं? एथेनोइक एसिड। इसका नाम होगा मिथाइल एथेनोएट। मिथाइल एथेनोएट। O8 आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या होगा? यहाँ पे हमने एथेनॉल यूज किया, 2 कार्बन एथेनॉल, और 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोपेनोइक एसिड। तो इसका नाम कोई बताएगा मुझे? You are reacting ethyl with propanoic, ethanol with propanoic acid. Esters जो बनेगा उसका नाम बताओ। Ethanol with propanoic acid. Anyone in the class? जो अल्कोहल है, as I mentioned, अल्कोहल क्या बनेगा? Again, Ethyl and propanate. excellent. Yes, ethyl और propanate. Yes. और नहीं, ये एक ही नाम है, इथाइल प्रोपेनोएट। तो जो एस्टर बना है, अभी मैं कल बताऊंगा अगर आपको एस्टर्स भी एग्जैक्ट एस्टर्स दिए हैं तो हाउ टू आइडेंटिफाई। बट अभी तक आपने जो अल्कोहल यूज किया है वो आइल बन गया और जो कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया वो O8 बन गया। इसका नाम होगा इथाइल प्रोपेनोएट। भाई सबको समझ आ गई बात? नहीं भी आई तो कल इसका इंशाल्लाह इसको डिटेल में करेंगे। नेमिंग ऑफ एस्टर, मेकिंग ऑफ एस्टर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट 3 to 4 mark question अगर मैं exaggerate नहीं कर रहा। Just from this, esters, naming and making। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।